बेटे पा तिरुदी सदा तू है सदा ती करे रहेगी सदा तू है सदा ती करे रहेगी रहेगा ना सदा ती कर मसीदा रहेगा जद तलक सूरज रहेगा रहेगा नाम सदा ती कर मसीदा हालेलुया हालेलुया प्रभु का हालेलुया हालेलुया रहेगा नाम सदा ती कर मसीदा। हमें पता है कि एक प्रभु यीशु का ही नाम है जो हमको दिया गया, जिसके द्वारा हमको निजात मिलती है, उद्धार मिलती है। और किसी नाम में हमको खुदा ने, प्रभु ने, परमेश्वर ने हमसे अपने पुत्र के रूप में होकर, प्रभु यीशु मसीह के रूप में होकर बात करी, और उसी के नाम के द्वारा हम सारी भक्ति करते हैं और हमारी एक आशीषें भी प्रभु के नाम से। हमें बहुत अच्छा ज़बूर आपने गाया। सिस्टर रीमा, जय मसीह की, आप ठीक है? जय मसीह की भाई जी, सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दे सबको। ठीक हो? प्रभु आशीष दे। आपको भी गाना तैयार है आपका? जी भाई जी। ठीक है, अभी आपका भी नाम बताते हैं। Praise the Lord, Sister Penny. Can you hear us now? Earlier we tried, but I don't know, you were not hearing us. Sister Penny, can you hear us, please? Sister Penny, आपको आवाज आ रही है? ब्रदर, सिस्टर ने मैसेज किया था मेरे व्हाट्सएप पे, शायद उनके कोई इशू हो गया, टेक्निकल एरर है कुछ। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी वो लाइन पे तो दिखा रही हैं, और अभी उनका anyway, if she's listening and she's there, that is fine. That's okay, no problem, that's okay. और ठीक है, now we will hear another song. अब हम एक गीत और सुनेंगे। Sister Ripsim, you have your song, sister? Yes, brother. This is in Armenian or English or Hindi? English, famous song, Love Lifted Me. Okay. If you have the words, you can, I think yes. Okay, Love Lifted Me, yes. We can see this song in the margin, in the chat margin. Sister has already posted this song. इस song को जब वो गाती हैं तो हमें पता है वो कौन सा गाना गा रही हैं. We can follow this song in the margin. और now sister, you can start the song. God bless you. I was sinking in the sea, far from the peaceful shore, very deeply stained by day, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe and mine. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Oh, my heart to hear my gift, ever to hear my plea. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true, there is my soul's great songs. Faithful love and service to Him belongs. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help,
and danger, look above. Jesus completely saves. He will lift you by His love out over angry waves. He's the master of the sea, below His will obey. He has saved us to be saved today. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Amen. God bless you all. Amen, amen. Praise the Lord. God bless you, sister. Lovely song. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. And we know who is love. We know God is love. And He has lifted us from the sinful condition to the righteous condition. And this is a true song. This is a testimony of a believer saying that love lifted me. परमेश्वर प्रेम है और उसके प्रेम के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है जब उसने अपना बेटा हमारे लिए भेज दिया अपना प्रिय पुत्र ही उसका प्रेम है और क्योंकि उसका प्रेम ना होता तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता बड़ा अच्छा गीत मैंने सुनाया गॉड ब्लेस यू एंड नाउ नेक्स्ट सॉन्ग अब हम सिस्टर रीमा आपका गाना तैयार है सिस्टर जी भाई जी God bless you. God bless you. आप स्टार्ट कर सकते सबको जय मसीह की प्रभु आशीष दे सबको जय मसीह की आपको भी आशीष दे प्रभु आमेन म पापको बाटो छोड्छु जहाँ जय मरण छ म पापको बाटो छोड्छु स्वर्गको घरलाई खोज्छु म यहाँ बस्ने मेरो छैन म स्वर्गको घरलाई खोज्दछु यहाँ बस्ने मेरो छैन म यो दुनिया मेरो घर होइन साँच्चै मेरो घर होइन यस दुनियाँमा आराम छैन यो दुनिया मेरो घर होइन यस दुनियाँमा आराम छैन यो दुनिया मेरो घर होइन मान्छेले रोक्न खोज्दछ गरिदिँदछ मान्छेले रोक्न खोज्दछ गरिदिँदछ तिनका बातलाई सुन्दिन म स्वर्गको घरलाई खोज्छु म तिनका बातलाई सुन्दिन म स्वर्गको घरलाई खोज्छु म यो दुनिया मेरो घर होइन साँच्चै होइन यस दुनियाँमा आराम छैन यो दुनिया मेरो घर होइन यस दुनियाँमा आराम छैन यो
जा यो दुनिया मेरो घर होइन साँच्चै मेरो घर होइन यस दुनियाँमा आराम छैन यो दुनियाँ मेरो घर होइन यस दुनियाँमा आराम छैन यो दुनियाँ मेरो घर होइन आमेन प्रभु आशीष दे सबको महिमा आमीन आमीन गॉड ब्लेस यू भाई किशन इसको ब्रीफ में आप बता देंगे इसका जो सारांश है थैंक यू यस मैं पाप का रास्ता छोड़ रहा हूँ आई एम लीविंग द वे टुवर्ड्स द सिन जहाँ इस संसार में बहुत से मनुष्य मरते हैं where many people die because of this sin स्वर्ग के राज्य के घर के मैं खोजी करता हूँ and I am looking forward to the eternal life the way to eternal life और इस संसार में रहने का मेरा मन नहीं है and I am not so keen continuing in this kind of world ये संसार मेरा घर नहीं है this world is not my home सच्ची में ये मेरा घर नहीं है in reality this is not my abode my home इस दुनिया में आराम नहीं है there is no rest in this world और ये दुनिया मेरा घर नहीं है and this world is not my abode not my residence मनुष्य मुझे रोकना चाहते हैं and the people around me they want to stop me discourage me मुझे प्रार्थना करने से भी रोकते हैं प्रार्थना करने में नहीं देते they also discourage me even praying so that I shouldn't be praying पर मैं उनकी बात को नहीं सुनूंगा और स्वर्ग के राज की खोजी में रहूंगा but I'm not going to listen to them I'm not going to be distracted but I will continue to find and follow the way to the kingdom of heaven मेरे साथ में पापी वो आओ पापी लोग आओ all the sinners of the world let us go together towards our way और स्वर्ग के देश में हम ही जाऊं हम लोग स्वर्ग के देश में चलें and let us go together on the way to heaven और जल्दी से आओ मेरे साथ में and come quickly let us go together जिससे कि हम स्वर्ग के घर को खोज पाए so that we could find the way to heaven ये संसार मेरा घर नहीं है सच्ची में ये मेरा घर नहीं है in reality to be in reality this world is not my home not my और abode इस दुनिया में आराम नहीं है ये दुनिया मेरा घर नहीं है and there is no rest in this world and this is not my home certainly not my home God bless you amen God bless you brother thank you for this now we will have another song before we move further sister Shakuntala will sing a song so sister ji ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗੀਤ start ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ God bless you brother praise the Lord ਸਾਰੇ brothers and sisters ਜ਼ਬੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ sister praise the Lord ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬੂਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰੱਬ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਆ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਦੁਆ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ हकीर न कदी समझेगा अपने अजीरां नू खुदा हकीर न कदी समझेगा मुसीबत दे विच फसिया दुखियारां दुख विच तसिया खलासी देवेगा खुदा बुलंदी में
बख्शेगा, खुलासी देवेगा खुदा, बुलंदी मैनू बख्शेगा। रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है। अपने असीरां नू खुदा हकीर न कदी समझेगा। खुदा दे नां दी ज़बान तद करेगी तारीफ बयान, शुकराने मैं मनावांगा, बजुर्गी ओदी गावांगा। रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है। अपने असीरां नू खुदा हकीर न कदी समझेगा। ते बूझे दिल ए वेखणगे, खुश होवण मारे खुशियां दे। जो ढूंढदे राय होवादा, दिल जिंदा होवे उन्हां दा। रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है। अपने अजीरां नू खुदा हकीर न कदी समझेगा। आमीन, हालेलुया। God bless you. God bless you. Praise the Lord. God bless nice Zabur, sister. This is Zabur believer about the prayer. The Lord hears, Lord listens to the prayer of faith, and we will not be, we are not small in front of Him. He elevates us. He raises us up by His grace, and when we pray, He listens to us and blesses us. बहुत अच्छा ज़बूर है और बड़ा उत्साह दिलाने वाला, वेरी वेरी एनकरेजिंग सॉन्ग। गॉड ब्लेस यू फॉर दिस। अब हम अपने मीटिंग में और आगे बढ़ते हुए अब हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और इस मीटिंग को प्रभु के हाथों में हम देंगे। और आज का वचन हम भाई जसविंदर से सुनेंगे। भाई जसविंदर हमारे साथ जुड़े हैं बर्मिंघम से, और मैं उनका वो हिंदी में संदेश देंगे तो मैं उनका ट्रांसलेशन करूंगा। एंड सो इट विल बी अ टू लैंग्वेज लाइक बिफोर। भाई जसविंदर से रिकॉर्ड भी करेंगे। और अब हम प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना में हम इस सभा को, इस मीटिंग को, जूम मीटिंग को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। एंड और इसमें हम खास तौर पे प्रार्थना में याद रखेंगे सिस्टर शकुंतला का जो उनका डिपार्टमेंटल एग्जाम है, और उनका एग्जाम है और ट्रेनिंग भी है, और कुछ दिनों के बाद में तो प्रभु उनको उसके लिए तैयारी दे और उनको मजबूत करे उस ज्ञान में, उस इंफॉर्मेशन में, जो भी सबक उन्होंने सीखना है, जो ट्रेनिंग उन्होंने लेनी है, उसके बाद जो उनका इम्तिहान होगा उस ट्रेनिंग के बेसिस पर प्रभु उसमें उनकी सहायता करे और उनको सक्सेस दे और कामयाबी दे। ये हमारी दुआ है। अभी हम जो दुआ करेंगे उसमें खास तौर पे सिस्टर शकुंतला को हम इस प्रार्थना में याद रखेंगे। और भी हमारे बीच में अगर किसी की कोई जरूरत है, प्रभु जानता है, तो कोई बीमार है, कमजोर है, तब हम उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और इस मीटिंग को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। और हम धन्यवाद करते हैं भाई विजय के लिए भी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिल्लौर पंजाब से, और उनके अच्छे मन के लिए, उस प्रेम के लिए जो प्रभु से करते हैं और प्रभु के वचन में वो मन लगाते हैं और प्रभु की सेवा भी करते हैं, और प्रभु उनको और तरक्की देगा। हमारी प्रार्थना उनके लिए और उनके परिवार के लिए और उनके सभी लोगों के लिए है। जहाँ पर भाई
राजेंद्र भाई जोशुआ जी और भाई राजेंद्र जी गए थे, उनको विजिट किया। भाई विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे भाई राजेंद्र मसीह के साथ, और इन सब बातों को हम अपनी प्रार्थना में याद रखते हुए प्रभु के हाथ में इस मीटिंग को सौंपते हैं। भाई राजेंद्र मसीह, थैंक यू। God bless you, brother, and God bless you all, brother, sister. तो आइए हम सब लोग खुदाबंद खुदा की हजूरी में आते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारा महान परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता है, और इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा दिया गया, ताकि हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद कर सकें, उसकी महिमा करें। और सारी आदर और महिमा के जलाल के योग्य सिर्फ हमारा प्रभु है। तो प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं जो तू खुदाबंद खुदा हर चीज़ को बनाया है, तूने हर चीज़ तेरे कंट्रोल में है, तू राजाओं का राजा है, सब पे प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करते हैं और सबसे पहले खुदाबंद तेरा धन्यवाद करते हैं जो खुदाबंद खुदा तूने अपना सच्चा पवित्र नाम हम पे प्रकट किया है, वचन सच्चा वचन दिया है, वचन का प्रकाश दिया है, सारा फजल तेरा है खुदाबंद। हम में कोई खूबी लियाकत नहीं, कोई धार्मिक के काम नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी तूने अपनी दया के वसीले से चुना है, हमने नहीं तुझे चुना। तेरा धन्यवाद करते हैं और खुदावंत तेरे वादों के लिए धन्यवाद करते हैं। खुदावंत तूने वादे किए हैं कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और जब भी खुदावंत तूने कहा मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। प्रभु जी तो हमारा वो खुदा है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और जवाब देता है प्रभु जी, क्योंकि तेरे आंख तेरे कान सदा धर्मी धन की दुआओं की तरफ लगे रहते हैं। और खुदावंत तूने अपने कलाम में कहा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ और जीवन का जल मैं हूँ। जो इस रोटी से खाए वो कभी ना मरे और जो इस जल से पिए वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। सचमुच खुदावंत तेरा सच्चा कलाम ही है जो खुदावंत हमें अनंत जीवन देता है। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी सभी जीवन की मेहरबानियों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंत खुदा, जो खुदावंत तू हर समय हमारी अगुवाई करता है, क्योंकि अच्छा चरवाहा खुदावंत सिर्फ तू है प्रभु जी। प्रभु जी दया कृपा करना, हमारी कमियों कमजोरियों को उठा ले प्रभु जी। हम तेरे कलाम में सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, तेरे डर खौफ में रहे, सदा आज्ञाकार पाए जाएं। और प्रभु जी हमें हिम्मत और ताकत दे, ईमान विश्वास की तकड़ाई देना प्रभु जी। और प्रभु जब तक इस जमीन पे रहें प्रभु जी तेरे ईमानदार पाए जाए और हमारे जीवनों में खुदावंत तू बढ़े और हम घटें प्रभु जी। हमारी इच्छा है कि हम इस जमीन पे अपनी मर्जी नहीं तेरी मर्जी को पूरा कर पाए, और खुदावंत तेरी मर्जी भी हमारे जीवनों में पूरी हो प्रभु जी। और अपने जीवन में हम खुदावंत पहला स्थान तुझे दें प्रभु जी। अनुग्रह कर प्रभु जी, और कोई भी चीज हमें तेरे प्रेम से अलग न कर पाए प्रभु जी। और जितने भी भाई बहन जो मीटिंग में इकट्ठे हुए हैं सब पे अनुग्रह कर, फजल कर, हर एक की दुनियावी आत्मिक आशीष बरकत स्वर्गीय खजाने से रिलीज कर प्रभु जी। और अपनी आमद के लिए तैयार कर, तैयारी वाला आत्मा दे प्रभु जी। हम इस योग्य बन पाए कि तेरे सामने खड़े होने के योग्य हो सके प्रभु जी। प्रभु जी तूने खुद वचन में कहा जो काम मनुष्य नहीं कर सकते वो तू करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हमारा विश्वास खुदावंत सिर्फ तुझ पे हो प्रभु जी। अनुग्रह करना, अगर कोई बीमार है तो खुदावंत तू वो खुदा है जो हर बीमारियों से चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु तेरे कलाम में आया, तूने खुद कहा कि यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके प्रभु जी। प्रभु जी अनुग्रह कर हम पूरी तरह लौट आए और खुदावंत हमारा फोकस सिर्फ तेरे कलाम की तरफ हो प्रभु जी। दया कृपा कर प्रभु जी। और प्रभु जी हर एक के नौकरी पेशे काम काज पे तेरी आशीष बरकत मांगते हैं। और प्रभु जी सिस्टर शकुंतला के लिए मांगते हैं प्रभु जी, उस बच्ची पे अपना अनुग्रह फजल वाला हाथ रखना प्रभु जी, क्योंकि खुदावंत तो अपने लोगों को पूंछ नहीं सिर बनाने वाला परमेश्वर है। और प्रभु जी तो अपने लोगों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। प्रभु जी उस सिस्टर को दुनियावी और आत्मिक ग्रोथ देना और स्वर्गीय खजाने से उसके लिए आशीष बरकत रिलीज करना प्रभु जी।
सारी जूम मीटिंग को तेरे हवाले करते हैं प्रभु जी। आज जो गीत गाए गए तेरी हजूरी में कबूल हो खुदावन। भाई मैनुअल को तेरे पवित्र जोरावर हाथों में देते हैं, जैसे बीते समय संभाल कर रखा। आने वाले खुदावन और ज्यादा अपनी पवित्र सेवा लेना, संभाल के रखना, और बहुत सारी आशीष बरकत से भर देना। और खुदावन भाई जसविंदर के लिए मांगते हैं, उनको आशीष बरकत देना। और आज का जो कलाम हो खुदावन तेरी तरफ से हो, और सुन के हम बहुत सारी आशीष बरकत पाए, उसको सुनने वाले ना उस पे चले भी, और खुदावन बहुत सारा फल लाने वाले हो सके प्रभु जी। और उस कलाम को हम स्टोर भी करें प्रभु जी। दया कृपा करना प्रभु जी। और खुदावन आने वाले समय में सब भाई बहनों को तेरे पवित्र जोरावर हाथों में जब भी मिले खुदावन तेरी महिमा करे, तेरे नाम को जलाल दे प्रभु जी। और सारी मीटिंग को तेरे हवाले करते हैं खुदावन, और विश्वास से मांग लेते हैं जो मांगा खुदावन तूने हमें दिया है, और सारा कुछ मांग लेते हैं प्रभु यीशु तेरे पवित्र और जलाली नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर राजेंद्र जी, गॉड ब्लेस यू। विश्वास से हमने प्रार्थना करी, विश्वास से मांगा है और प्रभु ने हमको दे दिया है, और हम सब ने इस प्रार्थना में आमीन कहा है एक ही आत्मा में होकर के। प्रभु का धन्यवाद हो। अब हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर के वचन से सुनते हैं, सुनेंगे, और बाइबल में से भी देखेंगे, और आत्मिक रूप से जैसे भी प्रभु ने, परमेश्वर ने हमारे भाई जसविंदर को आशीष दी है और उनको सेवा भी दी है, और वो अभी बर्मिंघम में है, पर वो जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ से वो सेवा भी करते हैं, ऑनलाइन भी और पर्सनली भी। आज का वचन हम ब्रदर जसविंदर से सुनेंगे, और मैं उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करूँगा। और अभी हमने जैसा प्रार्थना करी है तो प्रभु हमको ब्लेस करेगा। तो ओवर टू ब्रदर जसविंदर। ब्रदर जसविंदर, गॉड ब्लेस यू, यू कैन स्टार्ट नाउ। थैंक यू ब्रदर। ब्रदर आवाज़ साफ आ रही है आपको? हाँ जी, हम सबको आवाज ठीक आ रही है। कोई भी एक दो भाई बता दें। जी ब्रदर जी ठीक है। हाँ जी भाई जी क्लियर, ठीक है, बिल्कुल साफ क्लियर आ रही है भाई जी। हाँ जी, सारे आवाज क्लियर आ रही है। थैंक भाई जसविंदर ने अपना जो सिस्टम है, टेक्निकल सिस्टम, उसको ये सारे भाई बहनों के इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ जो अभी अभी जुड़े हैं कुछ समय पहले। सिस्टर रिबेका, सिस्टर संगीता और एक दो और बहन भाई जो भी जुड़े हैं, क्योंकि पहले हमारी ऑब्जर्वेशन थी और ऐसा बताया जा रहा था कि जो आवाज़ जो है वो कम आती है ब्रदर जसविंदर के साइड से जब वो बोलते हैं, तो शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी। वो टेक्निकल प्रॉब्लम अब ठीक हो गई है। भाई जसविंदर ने पूरा अपना सिस्टम नया लगा लिया है, और लैपटॉप भी और साउंड सिस्टम भी, तो अब इसलिए आवाज़ बिल्कुल क्लियर आएगी। तो अब हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगी वचन को सुनने में और समझने में, और उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो भी क्लियर होगी, जो कि बाद में जो लोग यूट्यूब पर दोबारा भी सुनते हैं उनको भी और क्लियर सुनने को मिलेगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो हर चीज़ के लिए। मे गॉड ब्लेस एंड ओवर टू ब्रदर जसविंदर। तो सभी भाई बहनों को प्रभु के नाम से सलाम करते हैं। I greet you all in the name of Jesus Christ our Lord. और प्रभु का इस सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए भी धन्यवाद करते हैं। And for all this technical instrumentation also we thank God. और प्रभु हमसे बातें करता है, और जो भी ज़रूरत होती है वो हमें गाइड करता है। The Lord speaks to us and He, whatever are our needs, He provides and He guides us. तो इसके लिए भी प्रभु ने हमारे मनों में डाला कि हम इस चीज़ को भी ठीक करें। And the Lord advised us, the Lord encouraged us that we should improvise and we should do something better on the sound system. और प्रभु ने हमें ऐसी सामर्थ्य दी कि हम इन सारी टेक्निकल चीज़ों को पूरा कर सकें। And the Lord enabled that we could improvise, we could improve upon all these technical things. तो ये प्रभु का काम है और प्रभु ही इसका इंतजाम करता है। And this is the work of the Lord, what we want to do by His grace, and the Lord Himself provides and arranges all this. क्योंकि अगर हम सोचे खुद से इन सारे इंस्ट्रूमेंट को खरीदना तो हमारे लिए ये नामुमकिन होता। And if we want to do everything on our own, then it won't be very much possible.
और सारा जलाल प्रभु के नाम को जाए। All glory belongs to the Lord. और जैसा कि हम कलाम से जानते हैं कि सारी सृष्टि और हर एक जो कुछ भी है इस संसार में या संसार से बाहर सब प्रभु ने बनाया है। And we know that all the creations, anything that we see around us has been created by God. लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारा प्रभु इस संसार में शरीर लेकर आया, And we know our Lord came here in the bodily form, in the human form. तो शैतान ने प्रभु को भी ये कहा कि अगर तू मेरा सिजदा करेगा तो ये संसार मैं तुझे दे दूंगा। And the devil, the Satan even went and spoke to our Lord that if you will worship me, I will give the things of this world to you. तो ये उसी संसार की बात कर रहा है शैतान जिसमें अब हम रह रहे हैं। And the same world in which we are living today, the same world, about this world only, the devil spoke to our Lord Jesus. तो शैतान प्रभु को कह रहा है कि And the devil was addressing Jesus, ये संसार मैं तुम्हें दे देता हूँ, that I will give all this to you. जबकि वो मालिक नहीं है। Although he is not the genuine, he is not the legal owner of this world, the devil. वो जिसे कह रहा है उसको भी उसी प्रभु ने बनाया। देखिए, And the Lord to whom he is talking, he is, even this devil is even created, that angel who became devil, even he was created by the same Lord. तो वो अपने ही मालिक को कह रहा है कि मैं तेरी चीज तुझे दे देता हूँ। And look at the irony that he is telling to the legal owner, the genuine owner and the creator, that I will give this creation to you. तो यानी वो उस चीज पर भी अपना हक जमा रहा है जो उसकी है ही नहीं। Now see, he is trying to put his right and ownership on something which doesn't belong to him. और इसी तरह वो मनुष्यों पर भी हक जमाता है जो कि उसके है नहीं। Likewise he comes and likewise he comes and he puts a doubt and he deceives the people, the human beings, although they don't belong to him. लेकिन इस संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर वो हक नहीं जमा सकता। There are some people, there are few people in this world, and he cannot show any authority, he cannot address any authority and win those people for himself. तो अगर हम पहला यूहन्ना और उसके 5 अध्याय और उसकी 19 आयत में अगर पढ़ें तो If we open in the New Testament, the first John and chapter 5, the first letter of John toward the end of the New Testament, and chapter 5 and verse 19. तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, And the word of God says here, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं we know that we are from God. और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। And the whole first John 5:19 we are reading, and it says, we know that we are of God and the whole world lies under the sway of the wicked one. तो यहाँ से हमें पता चलता है प्रभु के वचन से Now here we see from the word of God कि कुछ लोग हैं जो उसके वश में नहीं हैं। There are some people he cannot lay hand on those people, they are not in his control. और जो उसके प्रभु के नहीं हैं वो सारे उसके वश में है। And those who don't belong to the Lord, they are under him, they are in the bondage slavery of the devil. और उसने इस संसार को बहुत सारी शिक्षाओं से भरमाया हुआ है। And the devil has deceived this whole world, the most of this world, by different kind of teaching and direction. उसने भी अपनी बहुत सारी शिक्षाएं बना दी हुई हैं और इतने सारे ऑप्शन बना दिए हुए हैं कि इंसान उनमें फंस चुका है। And he has brought so many different kind of teachings and directions and to confuse the human being. इतने सारे उसने धर्म बना दिए, इतने सारी संस्थाएं बना दी हैं। He has made so many institutions and so many religions. तो इंसान एक में से निकलता है तो दूसरे में फंस जाता है। And the man, one after the other, gets deceived and gets confused. और हर इंसान सोचता है कि मैं सचमुच उस परमेश्वर के रास्ते पे चल रहा हूँ। And then he makes the person to realize
to think as if he is following God. हालांकि वो सब कुछ दिखने में बड़े लुभावने होते हैं, All these things look very attractive and very nice to see and hear. लेकिन उनका जो अंत है वो नरक को जाता है. But the end of that way, the end of that destination is leading toward hell. और हम में से बहुत सारे भाई बहन बहुत साल समय पहले हम भी इन्हीं रास्तों पर चल रहे थे अलग अलग. And many of us, brothers and sisters, have been in the same kind of tracks, in the same kind of teaching. और हमें भी लग रहा था कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं. And we also thought that everything is okay with us. तो कर्म को देखें तो कर्म अच्छे नहीं थे. But if we think about our deeds, our works, they were not nice, they were not good. लेकिन जो प्रभु के वचन में आया है But whoever has come into the word of God, कि प्रभु ने अपनों को जगत की उत्पत्ति से पहले चुना. And these are the people, these are the subjects, these are the people that the Lord has known them before the foundation of the world. तो हमें प्रभु ने इन अलग अलग रास्तों से निकाला. The Lord had withdrawn us, brought us out from all these different directions. सभी को प्रभु ने हमें एक रास्ते पे ले आया. And the Lord brought us to only one way, and that one way, which is the true way. तो जो वो रास्ता है वो एक ही रास्ता है. There is only one way, only the way, only one way. तो पहले हम भटकी हुई भेड़ों के समान सभी अलग अलग रास्तों पे चलते थे. Earlier we were lost like the sheep and going on in different direction. लेकिन हम अब सब सिर्फ एक ही रास्ते पे चल रहे हैं. But now we have come together, we have come out of those things, and now we are all following only one way through the Lord. पहले हम मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाजों को पूरा करते थे. We were earlier following the traditions of men. और बहुत बार हम गलतियां करते थे, नुकसान उठाते थे. And we will suffer losses and because we would make so many mistakes. क्योंकि लिखा है कि जो हमारा मल युद्ध है, but because it says that our fight, our wrestle जो is हड और मांस से नहीं है, it is not with the flesh and blood. वो अंधकार की ताकतों से है. It is with the principalities of darkness. तो शैतान जो है वो अंधकार का राजा है. Because devil is the king of darkness. और उसने इतनी सारी कंफ्यूजन बना दी है. And he has done so many confusions. इतने सारे मिलते जुलते रास्ते बना दे हैं. And all those ways they look alike. वो They look alike. इतने सारे ऑप्शन बना दिए हैं. And there are so many alternatives and options he has provided. उसको पता है कि एक इंसान अगर इस धर्म से निकलेगा तो दूसरे में फंस जाएगा. So because he knows if somebody is not happy, if somebody thinks to come out from here, he will go and engulf himself and be involved and be deceived by something else. जबकि ये सारे रास्ते अंधकार की ओर जाते हैं. Because we know, except the only true way, all other routes, all other ways lead towards darkness. और ये जो बातें हैं ये सारी संसारिक नहीं है, ये आत्मिक बातें हैं. And these are not the worldly things. These things we are talking about are not the things of the world, not the teachings and directions of the world. These are divine things, spiritual things. जो ये हम अंधकार की बात कर रहे हैं ये संसारिक अंधकार की बात नहीं हो रही. When we talking about the darkness, it's not the physical darkness. ये आत्मिक अंधकार की बात हो रही है. This is about the spiritual darkness. तो इस अंधकार में हम किधर जाएं? Now in this darkness, where do we go? What should we choose? तो अंधकार में रास्ता दिखाने के लिए एक रोशनी की जरूरत होती है. Because in order to see through the darkness, we need light. क्योंकि चारों तरफ अंधकार है, जिधर मर्जी चले जाएं आप. Now if we go to any direction, it's all darkness. तो इतने अंधकार में सही रास्ता कैसे मिले? How do we know what is the true way in this dark world? तो भजन संहिता 119 और उसके 105 में लिखा है. Verse 105 and Psalm
119 it says, कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और Psalm 119 and what verse, brother? वर्स 105 Verse 105, Psalm 119, verse 105, it says, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. यानी तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। Amen. Amen. तो प्रभु का जो इस अंधकार में जो रास्ता दिखा रहा है वो कौन दिखा रहा है? वचन। Now, how do we see through this darkness? Who is showing us the way? What is the source? क्योंकि सांसारिक शिक्षाएं कहती हैं कि सभी रास्ते एक ही समान हैं। Because all the teachings of the world advocate, they say, they confirm, or they say that all the ways, all the directions lead to only one destination. सारी शिक्षाएं, सारे धर्म एक ही बात है। All the religions, they are all alike and they all lead to the one goal. तो उसमें हमें प्रभु का वचन मिला। Now, when we receive the word of God, तो वचन का दीपक जब आया हमारे पास, now when we receive the light, the lamp of the word of God, उसने बताया कि इस संसार में आसमान के नीचे इस धरती के ऊपर सिर्फ एक नाम दिया गया। and through the word of God we come to know that there is no other name which has been given to us below the heavens and on this earth or under the earth. There is the only one name given to us, no other name. जिसके नाम में उद्धार है, सैल्वेशन है। And in that name only there is redemption. अब इस अंधकार में हमने ये उजाला नहीं मिला था हमें। We did not receive this light in the dark world otherwise. क्योंकि उद्धार की बात कहीं नहीं थी। Because there was nothing to do with redemption in those directions, in those teachings. उद्धार तो हमें पता भी नहीं था कि उद्धार भी होता है। We did not even know that there is anything such which is called redemption. तो हमने तो ये सिखाया गया था कि वर्शिप करनी है ताकि संसारिक सुख विलास में अच्छा निकले हमारा। And we were only told that we have to do some kind of works and some kind of worshipping and some kind of deeds so that, when we perform them, then everything will go well with us. तो इतने अंधकार में एक उजाला आया जिसने बताया कि उद्धार भी होता है, सैल्वेशन भी होती है। And then we came to know through our Lord, through the word of God, that there is something called which is redemption. कि स्वर्ग नरक भी है। That there is heaven and there is hell for real. इस शरीर के बाद भी एक जीवन है। There is a life after this physical life. तो जहाँ तो वो स्वर्ग जाता है या नरक जाता है। Either a person will be destined to go to heaven or hell, one of these destinations. लेकिन जो स्वर्ग का रास्ता है वो बहुत सारे नहीं है। Sister Rebecca, can you please mute your mic, Sister Rebecca? Thank you. Brother, can you repeat the last sentence? तो हमें प्रभु के दीपक से पता चला कि एक ही रास्ता है, दूसरा नहीं है कोई। Then when we came to the word of God, when we came to the Lord through his word, then we came to know that there is not many, but there is only one way to go to heaven. अब हम सोचें कि हमें ये कैसे पता चला। How do we know this? How did we get to know this? इससे प्रभु के वचन से पता चला। It is only through the word of God. और ये देखिए दीपक है जो अंधकार में जला। And this is the lamp which has shown us the way. The word of God is the lamp which has shown us the way in the street of darkness. और ये जो दीपक है ये किस तरफ लेके जाता है? And where is this lamp leading us to? ये किसी धर्म की तरफ नहीं लेके जा रहा। It is not taking us to a religion. किसी संस्था की तरफ नहीं लेके जा रहा। It is not taking us to an institution. ये नरक की तरफ नहीं लेके जा रहा। It is not taking us to hell either. ये हमें परमेश्वर की तरफ लेके जा रहा है। This is taking us back to God. उस परमेश्वर की तरफ जो सारे संसार का रचयिता है। Through
the only one God who is the creator of this whole universe. जिसने सारे पुराणों को बनाया, All the life has been given by the same creator. जिसके हाथ में इस शरीर और आत्मा दोनों का कब्जा है, And he owns the soul and the body both. वो जो नरक से भी अपने लोगों को ले आया, And he revived us, he recovered us, he turned us away even from the way of hell. जिसने मौत को भी हराया, And he overcame the death. तो ये वचन जब हमने पढ़ा, When we read through this word, तो हमारे अंदर जो अंधकार भरा था and the darkness which was in us, वो दूर होने लगा, and it was removed. क्योंकि इतने अंधकार में अगर आप एक छोटी सी भी लाइट जलाते हैं, Because when this is all pitch darkness everywhere, and even if you have a small light there, a small lamp there, तो हमें बहुत सारा आनंद महसूस होता है, then we are so happy, we rejoice, because through that little light we can see through the darkness. तो जैसे जैसे हम इस वचन पर दीपक के पीछे चलते रहे, As much as we follow the light of this word of God, which is our lamp, as much as we follow this, इस पता चला कि हम तो बहुत बड़े गुनहगार पापी हैं, then we came to know that we are great sinners. कि हमारा जो हमने गुनाह किए हैं उसकी सजा तो मौत है. That the sin that we have been into, the reward of that sin is only death. क्योंकि लिखा है पापों की मजदूरी मौत है. Because Bible says the wages of sin is death. और कौन सी मौत? On which kind of death we are talking about? ये संसारिक मौत भी है और आत्मिक मौत Not भी. the death we see in this world when we die. Not this death. उसके बाद जो नरक में सारी उम्र की मौत है, प्रभु से दूर हो जाना. There is a death that will follow for everlasting, for eternity we will have separation from God. That is the death we are talking about. तो ये बहुत बड़े दुख की बात थी हमारे लिए कि हमारा तो उद्धार ही नहीं है. And this was a great sad story for us, that painful story for us, that where was the redemption for us, how we could be saved. तो ये उसी तरह है कि जब आपके दिलों को छेदा जाए. And then this is only possible when our hearts are pricked to realize who we are. लेकिन हम जैसे जैसे इस दीपक के पीछे चलते रहे, As much as we follow this lamp, which is the word of God, तो हमारे को एक अच्छी खबर मिली, खुशखबरी मिली, then we received the good news कि एक अभी रास्ता बचा है बचने का. that there is one way, there is the way. कि अपने अपने पापों को कबूल करो कि हाँ हम गुनहगार हैं. That we must confess that we are sinners and we must confess our sin. और ये सारा कुछ आत्मिक है. Because this is all spiritual. These are divine things. और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो. Now we should be baptized for the remission of our sins as per the scriptures in the name of Lord Jesus Christ. वो जो दीपक था उसने हमें रोशनी दी. How did we know this? We were shown the ray of light through the lamp, which is the word of God. कि जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है. Because Jesus said we must be baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. So we must be baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. तो प्रभु ने हमें उसका भी उजाला दिया. Now God had enlightened us with that light so that we could correct ourselves. कि वो नाम है प्रभु यीशु मसीह. That name is Lord Jesus Christ. कि उसके नाम में बपतिस्मा लो तो तुम्हारे पाप हो जो हैं साफ हो जाएंगे. If we are correctly baptized according to the scriptures in the name of Lord Jesus Christ, then we receive the forgiveness of our sin. चाहे लाल रंग के भी हो, ज़्यादा जितने मर्जी बड़े गुनाह हो आपके, Even though we have massive
amount of sin, even if they are crimson or whatever dark color they should have, they will be washed away and made clean. प्रभु कहता है मैं उसे बर्फ की नाई कर दूंगा। आमीन। The Lord says that I will make them as white as snow. जो भी तुम्हारा पिछला बुरा रिकॉर्ड है मैं सारा साफ कर दूंगा। He आमीन। says I will erase and I will make the new. All your old record will be erased and it will be clean. जो उन पुराने गुनाहों को तुम उठा के शर्मिंदा होके घूम रहे हो मैं सारा साफ कर दूंगा। आमीन। And he says whatever you have been carrying as the load of your sins मैं तुम्हें on your soul, I will clear it up. नया जीवन दूंगा, नया बनाऊंगा। I will give you a new life. और जब तक तुम आत्मा और पानी से नहीं जन्म लोगे नया जन्म नहीं पा सकते। और जब as long as you are not born by the water and the spirit, you cannot be born again. तो प्रभु का दीपक हमें लगातार आगे बढ़ाता रहा। Now the lamp, which is the word of God, it kept on showing us the way, the real way to the kingdom, and continuously, as we follow it, continuously leads us. आज भी वो हमें रास्ता दिखाता है। Even today, it is guiding and directing us. ये तब तक दिखाता रहेगा जब तक हम इन संसार को नहीं छोड़ जाते। As long as we are in this world, until the time we go away from this world, and Lord calls us, it will continue to lead us and show the real path. और जब हमने अपने अपने पापों का गुनाह कबूल किया कि हम गुनहगार हैं, And when we confess that we are the sinners, तो प्रभु परमेश्वर ने हमें वो उजाला दिया कि तुम्हारे गुनाह किस तरह साफ होंगे। and our Lord showed us a way that how our sins can be forgiven. और लिखा है कि तुम्हें फिर प्रभु की तरफ से पवित्र आत्मा का दान दिया जाएगा। And he says that once your sins are forgiven, then you will receive the gift of the Holy Ghost. तो प्रभु ने भी ये वादा किया था यूहन्ना 14 में जब पढ़ते हैं हम। Now when we read through the John chapter 14, then the Lord said this promise कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दिए जाता हूँ that I give my peace to you, the Spirit. जो तुम्हारे अवसाद है वो तुम्हारे अंदर होगा। It is with you and in you. तो प्रभु परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा जो कि वो भी दीपक ही है। And now the Holy Spirit is that lamp जो क्या that is showing us the way. तो जैसे जैसे हम आज्ञाकारी होके उस दीपक के पीछे चलते रहते हैं, As we remain the followers and remain obedient to that light, तो प्रभु हमारा रूहानी और जिस्मानी जो है वो उद्धार करता है। the Lord redeems us and corrects us and supports us and makes us righteous both physically and spiritually. लेकिन जो शुरुआत होती है वो पहले आत्मिक होती है। But the starting point, it comes from within. It is divine. प्रभु ने कहा पहले तुम मेरी खोज करो। ये संसार He says first you should seek the kingdom of God. ये संसार की चीजें तो अपने आप तुम्हारे पीछे होंगी। The आमीन। things of the world will be provided to you, but you must first seek the kingdom of God. तो जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है So when we receive the Holy Ghost, तो हम फिर शारीरिक मनुष्य नहीं रह जाते। when we receive the Holy Ghost, that we do not remain, we change, we become different people, then we are not remaining as a worldly people. फिर शैतान नहीं कह सकता कि ये मेरे लोग हैं। Then devil cannot claim that we belong to him. तो फिर हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से हैं। Now we know that we are on the side of God. सिर्फ परमेश्वर की ओर ही नहीं, Not only to go towards God, प्रभु ने तो यहाँ तक वादा किया कि जितनों ने उसे के नाम पर ईमान रखा है, the Lord has confirmed that all those who have believed in his name, परमेश्वर ने उन्हें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया। the Lord has confirmed them to be his sons and daughters. और हमें इस बात पे गर्व है कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की औलाद हैं। And we are so proud, we are so happy that we know the real true God. और हमारा जो परमेश्वर है वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं And का our प्रभु Lord है। is the King of Kings. और हम उस राजे की संतान हैं। And we are his offspring, we are his children. और जब हम पूरी तरह ईमानदार होते हैं उस प्रभु के पीछे, And
And while we become fully faithful and obedient, तो प्रभु परमेश्वर ने हमें उससे बढ़कर आशीष देता है, then the Lord gives us enormous blessing, ample blessing. तो प्रभु कहता है कि अब से मैं तुम्हें अपना दास नहीं कहूँगा, The Lord says, henceforth you will not be my servants. मैं तुम्हें अपना दोस्त कहता हूँ. आमीन. You are my friends. देखिए ये कितनी अच्छी खुशखबरी है Look at this good news. कि सर्वशक्तिमान सृष्टि के रचयिता का दोस्त, That we become the friends of the creator of the heaven and earth. क्योंकि कहता है कि मालिक जो होता है, जब मालिक और दास, फिर दास नहीं जानता मालिक क्या कर रहा है, Because the servant doesn't know what the master does. परंतु अब तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा But हूँ. since we are no more servants, we are the children and we are the friends to our Almighty God. So we must know what God is saying to us. What is He doing? जो भी भाई बहन उजियाले में है, उसके प्रकाशन में है, Those who are His children, they are led into the light. और पूरी ईमानदारी विश्वास के साथ उस उजियाले के पीछे चल रहे हैं, And they are faithfully and diligently walking in that light and following it. और उस ईमान के साथ वो कर्म भी पूरा कर रहे हैं पूरा. And because of their faith, their works also change. And then they do those works after the faith. तो प्रभु उनको अपना दोस्त कहता है. And the Lord calls us His friend. तो प्रभु ने अपना आत्मा जो हमें दिया है, The Lord has enabled His Spirit to us. जो प्रभु ने कहा था अब तुम्हारे अंदर होगा, And Lord says it will be in you until the end of the age. तो फिर लिखा है कि अब तुम ही परमेश्वर का मंदिर हो. And He says because He dwells in it, so He calls us the temple of God. ईंटों की कोई चार दीवारी जो होती है वो नहीं है चर्च होता. It is not a boundary made with bricks or stones or concrete. No, our body, we are the temple of God in which the Spirit of God dwells in. प्रभु कहता है तो प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो. It says you are the temple of God and Spirit of God lives in you. यहाँ प्रभु के 2 या 3 जन भी इकट्ठे होते हैं एक ही ईमान नाम में. He says wherever 2 or 3 people, 2 or 3 believers will come together in the name of Lord in one faith, तो प्रभु वो चर्च ही होता है, टेम्पल होता है. then it is the church of God. प्रभु किसी चार दीवारी में फिर बंधा हुआ नहीं होता. Lord is not bound in a boundary or in a building or in an institution. प्रभु तो अपने लोगों में चलता फिरता है. The Lord is active and is visible and exhibiting through His people, moving through His people. तो फिर हम लोग जो पहले शारीरिक होते थे, शारीरिक शिक्षाओं पर चलने वाले, And those who were following the worldly desires and the worldly institutions before, मनुष्यों के बनाए हुए रीति रिवाजों पर चलने वाले होते थे. we were following the directions and traditions of men. अब हम आत्मिक लोग हो गए. Now we are divine people. अब हम शारीरिक नहीं रहे. Now we are not worldly people. तो पहला कुरिन्थियां और 2:14 में जब हम पढ़ते हैं, Now we have to read 1 Corinthians chapter 2 and verse 14. तो ये लिखा है फिर 1 Corinthians 2:14, it says here, कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता. 1 Corinthians 2:14 we are reading, the natural man does not receive the things of the Spirit of God. अब देखिए कि जो भाई बहन शारीरिक है वो परमेश्वर का वचन ग्रहण नहीं करेगा. Now you see, the person who is worldly, who is just following the world, that means who is in darkness, he will not receive, he will not acknowledge the word of God. ये उन्हीं की बात नहीं हो रही कि जो नॉन बिलीवर हैं. This is not talking only about them who are unbelievers. ये उनके लिए भी है, चाहे वो कहे क्रिश्चियन कहलाते हैं, किसी चर्च के संस्था के मेंबर भी हो सकते हैं. This is even applying to them who are nominally called a Christian, who call themselves so-called Christians. They belong to some kind of a church and denomination. चाहे बहुत ऊंची ऊंची गाते हों, बहुत ज़्यादा नाचते हों, They must be very active. They must be
very, very active in their churches, singing in loud voices. लेकिन अगर उन्होंने इस दीपक को, इस उजाले को ठुकरा दिया, But if they have not accepted and not received this light which comes through the word of God, फिर मायने नहीं रखता कि वो क्या करते हैं, then it doesn't matter what they do तो वो शरीरी की है, because they are worldly. क्योंकि जब भी उनके पास वचन जाता है ये उजाले का, दीपक का, Because when the word of God reaches them, वो ठुकरा देंगे, they will reject it. They will not say yes to it. चाहे उनके नाम भी एक मसीह नाम हो, Although they might carry a token, they might carry a symbol, they might carry a Christian name on them. तो बाइबल उसे शरीरी की मानती है, But the Bible claims it that it is worldly. इसीलिए कि वो संसार के हैं, वो परमेश्वर का वचन ग्रहण नहीं करेंगे। That is why, because they don't accept it, they reject the word of God, which is by the Spirit of God. That means they are worldly. परंतु आत्मिक मनुष्य जो होते हैं, But the divine people, the spiritual people, वो परमेश्वर के वचन पर, बातों पर मन लगाते हैं। they are the people who meditate and follow and focus on the word of God. और पहला कुरिन्थियां ही हम अगर देखते हैं 3:3 में, If we go further in verse 3 or chapter 3 of 1 Corinthians chapter 3 and verse 3 now, इसीलिए आप उन लोगों का बदलाव नहीं देखेंगे। that's why you will not see any change in their behavior. अकेला नाम बदल लेना काफ़ी नहीं होता, Just to show a change of name doesn't serve anything. और बाइबल में हम देखते हैं कि लोगों के मन बदले हैं। But in Bible we see the people who got converted, their hearts were changed. उनके करैक्टर चेंज हुए हैं, And their nature was changed, their behavior changed, their characteristic changed. और करैक्टर जो है एक विक्ट्री होता है। And then this is how we see that they have changed. नहीं तो लोग पानी में जाते हैं, सूखे जाते हैं, गीले निकल के आ जाते हैं। If the nature hasn't changed, if our life hasn't changed, if there is no change, then we have simply gone and taken a shower or taken a bath and made our clothes wet in the water and come out. इस तरह तो हम 50 बार बपतिस्मा ले लें, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। In this manner, even if we go and baptize many times, still there is no change, there is no difference, there is no change in us. अब आप देखें कि इसीलिए लिखा है कि तुम में झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं और तुम शरीरी की हो। In 1 Corinthians 3 and chapter 3 it says, For you are still carnal, for there are many envy, strife and divisions amongst you. क्योंकि अभी तक तो तुम मनुष्यों की रीतियों पे ही चल रहे हो। Because you are behaving like mere men, the worldly men. तो शारीरिक जो है वो शारीरिक ही बातों पर ध्यान देंगे। Because the person who is worldly, he will focus on the things of the world. क्योंकि अभी भी तुम में वही चुगलियां हैं, निंदा है, बुराई है। Because if you have not undergone a change, if there is no change in your nature, because your faith was not right, and you haven't done the way God expects us to do, so there is no change from inside, so that's why you are still doing the things you were doing before. क्योंकि अभी भी तुम जब संगति में भी जाते हो, कलीसिया में भी जाते हो, चर्च में भी जाते हो, जब So now even though you go into the fellowship, तो अगर आप बैठकर निंदा, बुराई, चुगली कर रहे हो, and if you are complaining, and if there is envy and strife and divisions amongst us, तो क्या ये अभी शारीरिक नहीं है? is this not worldly? Is this not carnal? कि अगर हम संगति में भी जाके 3-4 बैठ के चुगलियां कर रहे हैं तो ये क्या शारीरिक नहीं है अभी? What does it say that when we go into the fellowship and again we behave the same way? यानी अगर हम पहले अपने मोहल्ले गलियों में करते थे, अब हम चर्च में आके कर रहे हैं। We used to do these things in our by-lanes, in our street, in our neighborhood, but now we are doing the same thing in the church. और कर भी कहाँ रहे हैं हम, जहाँ प्रभु के और भी भाई बहन बच्चे हैं।
And where are we doing this now? और कर It भी is such a sorry thing that we are doing it where the other children of God are sitting. और किसकी अपनों ही की, And now you see, जबकि प्रभु ने हमें क्या सिखाया है what has the Lord taught us? कि अभी क्या तुम शारीरिक नहीं हो, कि अभी भी तुम में यही चीजें हैं। That even now, if you are engaged in this kind of behavior, then you are still carnal. You have not changed. वो तो इसका अर्थ है कि वो पवित्र आत्मा अंदर नहीं आया, Because you have not received and you're not being led by the Holy Ghost. क्योंकि अगर वो आया होता तो हम उस आत्मा के चलाए चलते। If you were led by the Holy Ghost, which is in you, then your behavior, your nature, your characteristics will change. तो आत्मा ऐसी चीजों की तरफ तो नहीं लेके जाता ना। The Spirit of God will not direct us to this kind of nature. प्रभु का आत्मा हमें सिर्फ एक चीज की तरफ लेके जाएगा। The Spirit of God who directs us only in one true way. और है उस प्रभु का वचन, That is the Word of God. क्योंकि आत्मा जो है वो प्रभु का आत्मा है, Because the Spirit is the Spirit of God. और जो वचन है वो प्रभु का वचन है। And the Word of God, and this Word which we are talking about is Word of God. It is divine. और जो आत्मा हमें मिला है, जो पेंटिकॉस्टल वाले दिन मिला था, And the Spirit, the Holy Spirit which we receive as we read in the New Testament in the book of Acts on the day of the Pentecost when the Holy Spirit descended. कि जो हमारे साथ था, जो अब हमारे अंदर है, And the Holy Spirit that we received is in us now. तो वो जो आत्मा है वो मल्टीपल पर्सनैलिटी, मल्टीपल क्वालिटीज हैं उसके अंदर। Now there are many traits, many characteristics, many fruits through that Spirit. क्योंकि वो आत्मा किसका है? प्रभु का आत्मा है ना। Because that Spirit is the Spirit of God. अब उसके अंदर इतनी खूबियां हैं, वो खूबियां आपको ब्लेस करेंगी। Now there are so many virtues, so many good characteristics in that, because of that Spirit that we receive many blessings because of that. आपको गाइड करेंगी कि कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है। It will guide you continuously. Where do you have to move? Where you have to stop? कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, Where you have to be quiet and where you must speak. कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। What we have to do at what time. तो ये सारा कुछ जो है प्रभु का आत्मा आपकी भलाई के लिए करेगा। All this the Spirit of God does for our goodness. कि ये आप पर है कि ये पैसा आप गलत चीजों में लगाएं या प्रभु के काम में लगाएं। Now it is up to us that these blessings, what we get, how do we use them? तो अगर हम यशाया में जाते हैं तो वहाँ पर प्रभु के आत्मा की वो मल्टीपल जो है क्वालिटीज है वो बताई गई हैं। If we read into the 11 Isaiah chapter 11 और उसकी 2 आयत, Isaiah chapter 11 and verse 2. तो इसमें आप देखें कि जो खुदा का आत्मा है उसके अंदर मल्टीपल जो है क्वालिटीज है। So there are multiple traits and virtues in the Spirit of God. तो यही देखें कि प्रभु ही आत्मा है, प्रभु ही वचन है। Now you see, the Spirit of God is the Spirit and this is the Word as well. और वचन ही दीपक है। And this Word itself is the lamp. तो आत्मा जो है वो वचन ही है। So the Spirit of God is the Word of God. क्योंकि इस कलाम को जिन भी नबियों ने लिखा है उन्होंने अपनी अकल से, बुद्ध से नहीं लिखा था। Because the Word of God which we have with us in the written form, whoever wrote this, they did not use it by their own knowledge and wisdom. प्रभु का आत्मा उन पर था। The Spirit of God was upon them and they were inspired by the Spirit of God and guided to write. इसीलिए इतने सारे नबियों ने इतने सालों के फर्क में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लिखी। That is why when so many writers have written this Word of God with the span of so many years, so many people, still there is a harmony, there is no confusion, there is no disagreement.
क्योंकि लिखने वाले चाहे अलग अलग थे पर लिखवाने वाला एक ही आत्मा है। Although the writers were different people with whose pen God helped them to write, but the author, the one who was directing, is one, that is God. तो टीचर कौन हुआ उन सभी नबियों का? प्रभु का आत्मा। That means the Spirit of God was the teacher who directed all these writers at different times. इसीलिए इस कलाम को समझा भी कौन सकता है? प्रभु का आत्मा। That is the reason the one who has helped to write it, and when we read it, we need the same Spirit to make us understand and comprehend this word. जब तक हमें नहीं मिला तब तक हमारे लिए ये बाइबल बंद है, भेद है। As long as we have not received that Holy Ghost in us, and we depend and we are led by the Holy Ghost, the Bible is remaining a closed book for us. We cannot understand this Bible without Holy Ghost. इसीलिए आज बहुत सारे मसीहों के लिए ये बाइबल उत्पत्ति से प्रकाशित तक अभी भी बंद है। That's why for many Christians, many people who call themselves Christians, this same Bible is a closed book. बाग अदन से लेकर फल से लेकर बपतिस्मा से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सब कुछ बंद पड़ा अभी भी। All the fundamental principles from Godhead, baptism, Lord's Supper, and how the church works, all these things are closed book, closed information for those people. जबकि प्रभु ने कहा था अंत समय में जो उसके लोग होंगे उन पर ये बातें खुलेंगी। Because the Lord had declared that in the last days these things will be revealed unto the people who belong to God. पर कौन खोलेगा? But who will disclose? Who will open? प्रभु का आत्मा खोलेगा। The Spirit of God will only open for us. पर जिसको मिला ही नहीं उसके कैसे खोलेगा? The people who have not recognized, they don't know what is Holy Ghost, they don't know, they have not received it. How will it be opened? How will it be revealed to them? पूरी बाइबल में पवित्र आत्मा मिलता कैसे है? कहाँ पता चलता है? How do we know? And how do we receive the Holy Ghost? वो 2:38 में लिखा है। It says in the Acts chapter 2 and verse 38. तो 95% लोगों ने तो वो पूरा ही नहीं किया हुआ है। Because the 95% of the so-called Christian world, they have not gone, they have not obeyed that scripture in their life. बाइबल वाला बपतिस्मा तो हुआ ही नहीं हुआ 95% मसीहों का। Many people have not been baptized correctly. Most of the people have not been baptized correctly according to the scripture. तो यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा कैसे मिलना है वो तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। Because the promise of the Holy Ghost, we must know where it is written that where is the promise of Holy Ghost receiving that once the scripture has been fulfilled. प्रभु ने कहा अगर जो बातें मैं तुमसे कही हैं उन पर ईमान रखो, उस पर चलोगे तब तुम मेरे चेले कहलाओगे। And the Lord said, whatever I have told you and taught you, if you believe on that, then only you will be my disciples. तो जब आत्मा ही नहीं मिला तो चीजें कैसे खुलेंगी? Now if we have not received the Holy Ghost, then how these things will be opened and revealed to us. तो अब आत्मा देखें कि आत्मा की जो है खूबियां कितनी हैं। Now let us see what are the attributes of the Holy Ghost. यहोवा का आत्मा जो है वो बुद्धि का आत्मा, पहला क्वालिटी। Because the Spirit of God is the Spirit of wisdom. क्या हमारा यहोवा परमेश्वर विजडम का परमेश्वर नहीं है? Is our God not the God of wisdom? क्या ये कायनात बिना विजडम से बनाई जा सकती थी? Could this creation be created without the wisdom of God? ये सूर्य चंद्रमा इतने सारे जो हम प्लेनेट देखते हैं, all this planetary world, could it be created without understanding and without the wisdom of God? ये हवा में लटकरी हुई गेंदें हैं। These are just like the balls. These planets are hanging in the air, in the atmosphere without any support. हम सारी उम्र कोशिश कर लें एक गेंद को नहीं हम घुमा सकेंगे। And we just cannot balance a ball in the air and think about it. और करोड़ों सालों से सूरज अपनी ड्यूटी नहीं भूला, चांद अपनी ड्यूटी नहीं भूला। All these creations, all these planets, they are working in order every day for many years. For so many years, there is no mistake in that. तो जानवर और
पेड़ पौधे भी देखिए आज तक उसकी कुदरत में चल रहे हैं। All the nature and all the creation and all the animal kingdom and all the plant kingdom, they are in obedience to the system which God has created. क्या आम के पेड़ ने कहा मेरे को गलती से संतरे उगा दिए? Now, how could this be that if there is a mango tree and suddenly starts giving the fruit as an orange? क्या काली भैंस ने कहा कि मैं तो काली हूँ, मैं दूध भी काला निकालूंगी? Now, if there is a buffalo which is of a dark color, it didn't say that the color of my milk will be different. अब देखिए भैंस पूरी काली है लेकिन दूध कितना सफेद, Now, you उसकी see the महान color रचना of the देखें आप। animal and look at the color of the milk. जो उसने फूलों में रंग डाल दिया हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। The variety of colors that the Lord has provided in different flowers, तो ये how a man could do this? तो ये देखिए विजडम से भरा हुआ परमेश्वर। Now they see this is the God, the Spirit of God, the mind of God is full of wisdom and understanding. अब उन्हें किसी विजडम पाए हुए इंसान को गरीब देखा? Have you seen anyone who is wise and has good understanding? Have you seen that he's poor? कभी किसी विजडम पाए इंसान को आपने कोई देखा कि सारे फैसले गलत ले रहा है? Have you seen him taking wrong decisions? Person who is wise. तो प्रभु ने याकूब की पत्री में कहा अगर किसी भी भाई बहन में कमी है विजडम की तो मेरे से मांगे मैं दूंगा। आमीन। That's why the Bible says in the New Testament, the Lord said, if anybody lacks wisdom, let him ask and I will give him. अब उसी विजडम ने देखिए नीति वचन लिखे हैं। And the Proverbs have been written by the same. आज भी उन नीति वचन का कोई तोड़ नहीं है सारे संसार में। And they're unparalleled. No one can really do anything better. No one can improvise upon them. सोलोमन ने मांगी थी, देखिए विजडम प्रभु ने दी। Solomon asked only one thing to God. He just asked for wisdom and he received. और उसने वो मुश्किल फैसले हल किए जिससे सारी दुनिया में मैसेज गया। And he received such, and he was involved in such difficult decision making in this world, which was unique because of the wisdom that came from God. तो अब सोच के देखें कि अब वही आत्मा जो है वो हमारे अंदर है। Now, can we think, can we realize, can we reconcile that the same Spirit is in us? तो वो सारा विजडम वाला परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। All that Spirit of God which is full of wisdom is in us. तो वो विजडम भी हमारे अंदर रहना चाहिए ना। Now, it should be with us and we should be led by it. तो जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान हैं। All those who are led by the Spirit of God are the children of God. लेकिन हम फैसले कैसे ले रहे हैं? What kind of acts, what kind of works we do, what kind of decisions we do, what kind of decision making we do? सारे वचन के खिलाफ। Is it all going against the word? तो फिर विजडम नहीं है। Because that wisdom which comes from the Spirit of God is missing. तो विजडम कैसे आना था? पवित्र आत्मा से आना था। It would have come to us through the Holy Ghost. तो विजडम नहीं है तो आत्मा नहीं है। If there is no wisdom, that means Holy Ghost is missing. जब आत्मा नहीं है तो विजडम क्या करेगा? And when the Holy Ghost is not around, then how could we receive wisdom? इसे अच्छी तरह समझ लें कि परमेश्वर जो है, जो विजडम है वो आत्मा के अंदर है। Now we should understand that the wisdom comes from within the Holy Ghost. परमेश्वर विजडम के अंदर नहीं, विजडम परमेश्वर के अंदर है। That God is not in wisdom, but the wisdom is in God. अगर आप परमेश्वर को बाहर कर देते हैं तो विजडम नहीं होगा। If God is missing in our life, then there is no wisdom. अगर परमेश्वर अंदर है तो विजडम आना ही आना है। If God is within us, then wisdom is bound to come. अब देखिए अगला क्या है, क्वालिटी लिखी समझ का आत्मा। Now you see, the next one is understanding. तो वो तो पता चल ही जाता है हमें। And now we can definitely see that. It can't be hidden. तो ये जब क्वालिटीज आएंगी तो छुपी नहीं रहती। Now when we have these qualities, then they cannot be hidden. They will be exhibited. They will be manifested. They can be seen by our behavior and our life.
और अच्छी बात है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमारे पास ये चीजें हैं। And no, the best thing is we don't have to say, we don't have to brag about it that look, I have these qualities, I have this wisdom, I have the understanding which comes from the Holy Ghost. We don't have to say, it is automatically visible. जब आप कहीं जॉब भी करते हैं When we work anywhere in this world, और साथ वाले बताते हैं आपके, then the people who are your colleagues, whom you work with and associate with, they are the people, they will notice and they will say, yes, there is something special in this person. परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का और समझ का आत्मा है। The Spirit of God is the spirit of wisdom and understanding. और युक्ति का आत्मा है। And this is the spirit of counsel. बिना प्लानिंग से आप काम नहीं करेंगे। You will not be working haphazard without any planning. No, you will be organized. You will have a proper counsel. पर पराक्रम का आत्मा And it is the spirit of might and power. और ज्ञान का आत्मा, And it is the spirit of knowledge. और ज्ञान भी दो तरह का है, And there is two type of knowledge. एक संसारिक है, एक आत्मिक है। One is worldly, one is divine. तो प्रभु आत्मिक है, तो इस ज्ञान का भी आत्मिक बात Because होगी। God is a spirit. And so this kind of knowledge will be spiritual and divine because it comes from God. तो प्रभु का आत्मा अंदर हो और उसे वचन का ज्ञान ना हो। How could this be possible? The Spirit of God lives in a man and the man is led by it and he will not have the wisdom of God. उसे यही नहीं पता हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम क्या है। How would he not know? How would he not be led by the wisdom given by the Spirit of God that what is the name of the Father, Son and the Holy Ghost? What did Jesus say? परमेश्वर एक है या तीन है, Is God one or is God three persons? या हवा ने सेब खाया था वहां तोड़ के। In the book of Genesis, did that woman called Eve, did she really eat a fruit or apple or something like that? प्रकाशित वाक्य में बताओ हम कौन से युग में रह रहे हैं। And the book of Revelation tells us that we are living in what times, which age we are living in. क्या हमें ज्ञान नहीं होगा इस चीजों का? Will we have no knowledge on this? और यहोवा के भय का आत्मा। And then another quality it says, it is the Spirit will lead us to the fear of God. तो वो भाई बहन परमेश्वर का भय मानेगा। Now such person who is led by the Spirit of God, who has the Spirit of God, he will be in the fear of God. मनुष्यों के डराने से मत डरो जो सिर्फ शरीर का नुकसान कर सकते हैं। He will not fear the men, those who can damage, those who can destroy the physical body. उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर सकता है। We should fear him, that is the Almighty God, who has control on both on our body and on our soul. अब देखिए कि जो भी प्रभु का जन है, कलाम क्या कहता है। Now you see what is the word of God talking about it. कि यहोवा का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। And the Spirit of God will bestow upon him, will stay with him. तो जो आत्मा प्रभु के साथ था, प्रभु यीशु के साथ था हमारे, And the Spirit which was upon our Lord Jesus Christ, जो यहोवा पिता ने वादा किया था कि उस पर ठहरेगा, and the Spirit which was manifested and witnessed by God himself, that the Spirit of God will come and rest upon his Son. तो वही प्रभु यीशु ने फिर वादा किया। And our Lord Jesus Christ did the same promise for us. कि मेरा पिता मेरे नाम से तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। And my Father will send the Holy Ghost to you, and the Holy Ghost will come in my name. और वो काम क्या करेगा? And what will he do? जो वचन शिक्षाएं मैंने तुम्हें दी है वो तुम्हें सिखाएगा बल्कि याद कराएगा। The teachings and teachings that I have given you, it will remind you and it will teach you whatever I have taught you. अगर हमारे जीवन में ये कार्य नहीं हो रहे
if these things are not manifested and vindicated through our life, तो हम तो संसारिक कार्य कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े चुगलियाँ, तो वो हमारे साथ नहीं है। that is why we are engaged in those worldly activities. तो ये था कि प्रभु का वचन हमारे लिए सबसे पहले दीपक बन के आया। Now you see, now we go back to where we started, that the word of God came to our life like a lamp. और उसने स्टेप बाय स्टेप हमें रास्ता दिखाया, सीढ़ी की तरह चढ़ाया ऊपर। And it has led us step by step into the way, showing the light, leading to God. हमारी समझ को बढ़ाया It has enhanced our understanding और अपने कलाम का प्रकाशन हमको दिया and has given the revelation of His word. और आज भी वो हमें गाइड करता है And even today He is guiding us. कि क्या करना है क्या नहीं करना है, That what we have to do, how we have to live our life. अपने बच्चों को हमेशा वो नुकसान से बचाता है। And Lord always protects and guides His children so that they should not go in the wrong direction. शैतान के सारे हमलों से बचाता है From all the invasions and attacks of the devil. और हमें उद्धार की ओर लेके जा रहा है, मुक्ति की ओर लेके जा रहा And है, He is leading us towards salvation, towards eternal life. रैप्चर तक लेके जा रहा है। He is leading us towards the rapture. जिस दिन वो दिन आएगा The day arrives, कि जो वो परमेश्वर पहले पिता बन के कार्य कर रहा था, the Father who was the God who was working earlier as a Father, और फिर शरीर बन के आया, and then He Himself was manifested in the human body as Son on earth. अब वो पवित्र आत्मा से अगुवाई कर रहा है। And the same God who was in His Son Jesus Christ, who is that God who is the Spirit, is now in us and is working through us. जब वो दूल्हा आएगा हमारा यीशु राजा, When the bridegroom, our Prince, will come, तो वो अपनी ड्यूटी पूरी करके हैंड ओवर कर देगा हमारे प्रभु यीशु को। then He will fulfill His duty and He will hand over the authority which was given to Him back to the Father. तो दुल्हन फिर दूल्हे के साथ होगी, The bride will be accompanied all times with the bridegroom, that is our Lord, तो यीशु फिर अपना जो रहता कार्य करेगा, and the Lord will do his remaining work. तो आखिर में प्रभु यीशु भी वापस अपने पिता से निकल कर आया था, वो पिता में चला जाएगा। The Lord Jesus Christ, the Son, He proceeded from the Father and He will go and merge with the Father. कि फिर जो यहोवा पिता था और है हमेशा रहेगा। Then God will be all in all. प्रभु आपको इस छोटे से संदेश से आशीष बरकत दे। May the Lord bless you with this few scriptures and with this lesson. और हम इस कलाम को समझें और इसको अपने अंदर लें। Now we should receive this word and take it in us. प्रभु के आत्मा में चलें, विजडम में चलें, We should be led by the Spirit of God. और जो भी प्रभु हमें रोशनी दिखाता है उसके पीछे चलें, इज्जत करें। And the light which the Lord is leading us into, we should respect it and we should follow it. जो भी प्रभु के कलाम में प्रभु को पसंद नहीं है उसे ना करें। And the things which the Lord doesn't like, doesn't approve, we should not be doing those things. क्योंकि लिखा है मनुष्य गलती करता है, Because the man makes mistake, परंतु मूर्ख उसे दोहराता है। but the foolish person repeats the same mistake again and again, doesn't correct himself. और मूर्ख प्रभु के साथ नहीं गया। And the foolish people cannot go with the Lord. प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। May the Lord bless you abundantly. और अगला समय भाई मैनुअल को देते हैं। And as we continue now, we have done with our Bible study, or we learned from the Word of God that the Word of God is the lamp for our feet and it leads us to eternal life. It tells us heavenly things and the Spirit of God teaches us and guides us. Thank you, Brother Jaswinder. Brother Jaswinder, प्रभु आपको बहुत आशीष दे जो बातें हमने वचन से सीखी। God bless you. आमीन।
आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो हर चीज के लिए। आमीन। और हम जानते हैं कि हम जो अपने आप को मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो हम उन संसार की शिक्षाओं पर नहीं चलते, संसार के हिसाब से नहीं चलते, हम प्रभु के वचन के हिसाब से चलते हैं। और संसार तो कहता है कि ये कर्म करो और वो कर्म करो और ये ट्रेडिशन करो और ये पुण्य के काम करो, ये करो और ऐसा करो तो तुमको मोक्ष मिलेगा और तुम्हारी आत्मा की संतुष्टि हो जाएगी। पर परमेश्वर का वचन इस तरीके की बातें नहीं बताता, क्योंकि अच्छे काम तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने देखा कि हम गुनहगार हैं। जब तक हमारा उद्धार नहीं होता तब तक हम अच्छे काम कर ही नहीं सकते। हमारे काम चेंज ही नहीं होंगे जब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। तो हमारा पहला फोकस कामों पर नहीं, ट्रेडिशन पर नहीं, रीति रिवाज पर नहीं, उन लॉफुल एक्टिविटीज पर नहीं, हमारा ध्यान तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है उसी के द्वारा हमारा उद्धार है। As we have seen through our learning today, that the Lamb, which is the word of God for us, and like we know that our religion is not a religion which is controlled by laws and rules and regulations and traditions and teachings of this world. No, our faith, Christianity, is not that kind of religion as the world thinks, that it is a religion of laws and duties and traditions and do's and don'ts. No, that is not our religion. Our religion is that we are the children of the love of God. We cannot love laws and traditions and rules and regulations, but we can love the man. And who is the person we need to love? Bible says, love your God with all your might and with all your heart, and love your neighbor and your brother with the same attitude. This is our religion. This is our faith. And when we move like this, then we should be found worthy when the Lord comes. तब हम प्रभु के लिए योग्य ठहराएंगे जब प्रभु आएगा, क्योंकि हम किसी ट्रेडिशन या किसी लॉफुल एक्टिविटीज से प्रेम नहीं कर सकते। हम तो प्रेम कर सकते हैं किसी मनुष्य से या किसी व्यक्तित्व से या किसी पर्सनैलिटी से। परमेश्वर ने वो प्रेम हमसे किया और हमको भी उससे प्रेम करना है और अपने भाइयों से भी प्रेम करना है, उनकी संगति में रहना है। ये है हमारा धर्म, ये है हमारा रिलीजन, और ये पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। May the Lord bless us all। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। अब हमारी आज की सभा यहाँ पर समाप्त होती है और अब हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु का धन्यवाद करते हुए और एक बार फिर से जो प्रार्थना हमने शुरू में करी थी, उन सभी बातों को प्रभु ने सुना है और प्रभु उसके हिसाब से हमको आशीष देने वाला है। और इस वचन के लिए भी हम उसका धन्यवाद करते हैं। आप और सभी भाई बहनों के लिए जो जुड़े हैं, सबके लिए और उनके परिवारों के लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और भाई किशन के साथ अब हम प्रार्थना करेंगे और इस सभा को समाप्त करेंगे। ब्रदर किशन प्लीज। यस, आमीन। थैंक यू ब्रदर। प्रभु के नाम में आइए हम धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ने हम सबसे बातचीत करी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र अति पवित्र परम पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं प्रभु। स्वर्गीय अनंत का पिता प्रभु, महान धन्यवाद। विश्वास से योग्य प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपके विश्वस्तता के कारण से हो प्रभु हम यहाँ हैं। हालेलुया प्रभु, आपके ज्योति के कारण से हम यहाँ हैं प्रभु जी। प्रभु आपका वचन जो कि हमारे लिए ज्योति, हमारे पाँव के लिए ज्योति है प्रभु, जो कि हमें लीड और गाइड करता है आपकी आत्मा हो प्रभु वचन में होकर के। जी प्रभु, आज का महान वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, क्योंकि प्रभु आपकी आत्मा जिस पर नहीं है वो आपका नहीं है। हालेलुया प्रभु जी। प्रभु अगर हमने वो आत्मा नहीं पाई है, अगर किसी ने नहीं पाई है, तो फिर वो आपका जन नहीं है। और वचन फिर आपका वचन ने हमें दिखाया कि जो कोई आपके आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, रोमी की पुस्तक कहता है। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु आपके इस महान वचन के लिए, जो कि हमें वो प्रभु सजग कर रहा है और हमें लीड और गाइड कर रहा है कि हम हमेशा आपकी पवित्र आत्मा में बने रहे, आपके वचन में बने रहे। जब तक हम वचन में नहीं है तब तक पवित्र आत्मा नहीं है। और
जब हम पवित्र आत्मा में नहीं है तो हम आपके संतान नहीं है। इसीलिए आवश्यक है कि हम आपके वचन में बने रहे और आपकी संगति में बने रहे, आपकी पवित्र आत्मा में बने रहे, तब हम आपके संतान होंगे, तब हम स्वर्ग के राज्य के भागी होंगे। जी प्रभु, धन्यवाद हो इस महान कलाम के लिए प्रभु, और जो प्रभु आपने हमारे मध्य में होकर के हम सबको जगाया प्रभु। हाँ प्रभु, ये समय जागने का समय ये है प्रभु। हाँ बिल्कुल, हम सोए हुए थे, सुप्त थे प्रभु, आपका महान वचन हमें झकझोर रहा है और हमें जगा रहा है कि ये समय सोने का नहीं, ये जागने का समय। हाँ प्रभु, हम आपके वचन में, आपकी प्रार्थना में हम जागा रहने का समय। जी प्रभु, हमें ऐसे ही आप हमें लीड और गाइड करना प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, जो कि अभी इस समय आप हमारे मध्य में है, हमारे अंदर है। हो, आपके वचन में से हमने सुना प्रभु, आप हमारे हृदय में हैं, क्योंकि हम आपके मंदिर है। जब हम शुद्ध हैं, जब हम निष्कोट हैं, दाग रहित है, तब जाकर के आप हमारे मन मंदिर में वास करते हैं। जब हम नम्र होते हैं, तब आकर के आप आकर के हमारे हृदय में वास करते हैं। ओ प्रभु, आपने महान वचन के द्वारा हमें, ओ प्रभु, वो चेतावनी दी है कि अगर हम कठोर हैं तो फिर आप हमारे में नहीं है। हाँ प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, हमें आपका वचन हमें नम्र होने की चेतावनी दे रहा है। जी प्रभु, और अगर हम फिर भी कुड़कुड़ाते हैं और आपके वचन के विपरीत हो, वही पुराने शारीरिक दशा में है, तो फिर आप हमारे मध्य में नहीं है। जी प्रभु, धन्यवाद हो आपकी इस महान वचन के लिए और इस जगाने वाले वचन के लिए, जो कि हमें सजग कर रहा है, सावधान कर रहा है। अगर हम फिर से गलती गुनाह में वहीं घिरे हुए हैं तो फिर हम आपके जन नहीं हैं। ओ प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, हमें ये वचन हम सब पर प्रश्न कर रहा है, हर एक पर, अपने आप पर। ओ प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है, जैसा कि भाई ने भी वचन में से पढ़ा, वो प्रेरित की पुस्तक में उस वचन को सुन करके दो में उनका हृदय छिद गए थे। वैसे ही अगर वचन हमें छिद जाता है, हृदय में टच करता है, तभी जाकर के वो वचन हमारे लिए काम करता है। जी प्रभु, धन्यवाद हो इस महान वचन के लिए प्रभु। ओ प्रभु, हमें सजग रहने में, आपके वचन में रहने में, आपके पवित्र आत्मा में बने रहने में और आपके संति में नम्र विनम्र होकर के आपके बुलंद हाथों के नीचे हो प्रभु आज्ञाकारी होकर के चलने में आप हमें लीड और गाइड करें। इन सुने हुए महान वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, और इस वचन को हमारे हृदय में रख देना प्रभु और आशीष से भर देना, जिससे कि प्रभु हम इन सुने हुए हर एक वचन को दिन रात मनन करके सुने हुए वचन अनुसार चलने वाले हो सके। आपका वचन फिर कहता है, हो हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने। जी प्रभु, हमें वो सामर्थ्य देना कि प्रभु हम सुने हुए हर एक वचन के अनुसार चलने वाले हो सके, जिससे कि हम भरीपूरी होकर के, आपके वचन से भरीपूरी होकर के, आपके फलों से लदे हुए, पवित्र आत्मा के फलों से लदे हुए होकर के आपको भाने वाला और आपको प्रसन्न करने वाला हो सके। और आपके साथ में जब आपका आगमन बहुत निकट है तो हम तैयार पाए जा करके आपके साथ में उठाए ले जाने योग्य हो सके। धन्यवाद प्रभु इस महान वचन के लिए। प्यारे भाई को, जो कि आपका दास है, हमारा प्यारा भाई जसविंदर जी को आशीष से भर देना प्रभु, भाई के कामकाज में, भाई के योजना में और भाई के सारे घराने में आशीष से भर देना प्रभु आप, जिससे कि वो प्रभु आपके शांति में रह करके और आपकी महान वचन को और ज्यादा बांट सके, जिससे कि आपकी आमद और निकट हो सके। प्रभु अनुग्रह करना प्यारे भाई पर, भाई को आपने यूज किया, इस्तेमाल किया प्रभु, भाई को आशीष से भर देना प्रभु और सामर्थ्य से भर देना प्रभु, प्रकाशन से भर देना, पवित्र आत्मा से भर देना कि प्रभु वो आपके महान कलाम को और ज्यादा बांट सके। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु प्यारे भाई इमानुएल के लिए। जी प्रभु आपका दास है, हमारा प्यारा भाई है, भाई बुजुर्गी की हालत में जी प्रभु हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे वो प्रभु हम सबके लाभ के लिए वो हमें अनुवाद करके, ट्रांसलेट करके आपके वचन सुनाते हैं, क्योंकि हम भिन्न भिन्न क्षेत्र भाग से यहाँ एकत्र हैं प्रभु, और आपका कलाम सबको लाभ पहुंचे हो प्रभु, इसीलिए हो प्रभु वो हमेशा तत्पर रहते हैं और आपके वचन बांटने में, आपके वचन शेयर करने में वो दूर दराज वो यात्रा करते रहते हैं प्रभु। भाई को अनुग्रह करना, बुजुर्ग की हालत में वो प्रभु आप भाई के साथ होना प्रभु, और भाई को सामर्थ्य से भर देना प्रभु,
और भाई को आशीष से भर देना प्रभु, जिससे कि वो प्रभु आपके महान वचन को और ज्यादा से ज्यादा बांट सके और ज्यादा से ज्यादा वो आपकी महिमा कर सके। वो अनुग्रह करना प्रभु, भाई को आशीष से भर देना, भाई को आपकी सामर्थ्य से भर देना प्रभु। ओ प्रभु, आप में कोई चीज असंभव नहीं है प्रभु। ओ प्रभु, आपका वचन कहता है ओ प्रभु, आप में कोई चीज असंभव नहीं है। जी प्रभु, अनुग्रह करना भाई पर और हम सब पर आशीष अनुग्रह बरसा देना प्रभु। जी प्रभु, हम वो आपके अनुग्रह से, आपके आशीष से भरी पूरी होकर के, जी प्रभु, आपके समझ से भरी पूरी होकर के, जैसा कि आपका वचन में से सुना हमने, वो जिसको समझ की आवश्यकता, याकूब की पुस्तक कहता है, मुझसे मांगे। जी प्रभु, हमें आपकी समझ की आवश्यकता है प्रभु, क्योंकि जो वचन हम सुनते हैं, जो वचन हम पढ़ते हैं, वो स्वर्गीय वचन है। उसको समझ के लिए, उसकी प्रकाशन के लिए आपकी समझ की आवश्यकता है। इसीलिए तो यशायाह की पुस्तक फिर कहता है, ओ तुम्हारी समझ, तुम्हारी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। यस प्रभु, आपकी सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी चाल और हमारी चाल में जमीन आसमान के फर्क है। इसलिए प्रभु, आप हमें समझ से, आपके सामर्थ्य से भर देना कि हम आपके समझ पा करके, आपके सामर्थ्य पा करके, आपकी समझ अनुसार और आपके चाल अनुसार चलने वाले हो सके और आपके आमद में, आपके साथ में उठाए जाने योग्य हो सके और स्वर्ग में उस मेमने के विवाह भोज में जो बुलाए पाए हुए हैं, उन धन्य के जनों के साथ में सम्मिलित होने योग्य हो सके। अनुग्रह करना प्रभु। जी प्रभु, हमें नम्र वाला हृदय देना, विनम्र वाला हृदय देना, आज्ञाकारी वाला हृदय देना कि हम आज्ञाकारी संतान कहला सके, ज्योति के संतान कहला सके, कि हम ज्योति में चलने वाले हो सके। जी प्रभु, हमने प्रकाश पाई है तो प्रभु हम प्रकाश में चलने वाले हो सके, जिससे कि हम कोई ठोकर खा करके ना गिर सके। प्रभु, अनुग्रह करना, हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। अनुग्रह करना हर एक भाई बहन को, जो घटी कमी में है वो आप जानते हैं प्रभु, मैं नहीं जानता। जिनको जो आवश्यकता है प्रभु, आप हमारे भरी पूरी वाला प्रभु है। आप में कोई कमी नहीं है प्रभु। अगर आप जहां हैं वो प्रभु, वहां फिर घटी कमी कैसे नहीं हो सकता प्रभु। आप जहां हैं वहां फिर दुख कष्ट बीमारी कैसे, क्योंकि आप चंगाई दाता नहीं हो सकता प्रभु। जहां आप है और वहां घटी कमी हो, वहां बीमारी हो, दुख कष्ट हो, नहीं प्रभु, नहीं हो सकता। वो तो सिर्फ दुष्ट की छल है प्रभु, दुष्ट की चाल युक्ति है कि हमें आपके वचन से, आपके सामर्थ्य से, आपके महिमा से दूर ले जाने के लिए वो युक्ति रचता है, चाल करता है, हमें बहकाने के लिए, भटकाने के लिए। जी प्रभु, आप अनुग्रह करना कि जो घटी कमी में है उनको आपके स्वर्गीय भंडार, जो भरी पूरी वाला भंडार है, उससे भर देना। जो दुख कष्ट बीमारी में है उनको आपके शिफा वाला, चंगाई वाला हाथ से छू देना कि प्रभु वो चंगा हो सके और आपको महिमा कर सके। जी प्रभु, हमारे काम अच्छे नहीं है प्रभु, हमारे जो गलती गुनाह है उन सबको हम कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं प्रभु। आप क्षमावान हैं, आप दयावान हैं। जी प्रभु, इसीलिए आपका भय माना जाता है। आप हम सब पर दया करना प्रभु, क्षमा करना हमारे गलती गुनाह को, जिससे कि हम ओ प्रभु आपके साथ में चल सके। अनुग्रह करना, हालेलुया प्रभु, जिससे कि हम आपको ही महिमा कर सके, आपको ही धन्यवाद कर सके। हर एक बातों के लिए धन्यवाद जी प्रभु, धन्यवाद। हर एक चीज में आपको नाम को महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु, हर एक बातों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए सारा आदर मान महिमा प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में सिर्फ और सिर्फ आपको मिले। प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू।